دیکھیں یہ جو ہے نا اپنے آپ میں ایک اتنا بڑا بلنڈر ہے قرآن کا، اور صرف ایک آیت نہیں ہے محمد عربی صاحب، صرف ایک آیت نہیں ہے، چاروں کی چاروں آیتیں جس میں محمد کا لفظ آیا ہے، یہاں تک کہ پانچویں بھی جس میں احمد کا لفظ آیا ہے، وہ ساری کی ساری یہ ثابت کرنے میں، یہ کلیئر کرنے میں صاحب وہ ناکام ہے کہ یہ بات جو ہے وہ مسلمانوں کے موجودہ نبی کے بارے میں کی جا رہی ہے. کیونکہ یہ والی آیت دیکھتے ہیں 47 کی 2، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اس پر بھی ایمان لائے جو محمد پر اتاری گئی ہے اور دراصل ان کے رب کی طرف سے ہے، سچا مطلب سچا بھی وہی ہے، اللہ نے ان کے گناہ کو درکنار کر دیا ہے. تو یہاں پر بھی یہ جو آیت ہے یہ سوال کھڑی کرتی ہے، سوالات پیدا کرتی ہے محمد عربی صاحب. وہ یہ کہہ رہا ہے قرآن کہ جو لوگ ایمان لائے کس پر؟ جو کچھ بھی ہم نے اتارا محمد پر، اور جو لوگ ایمان لائے محمد پر اور سچے دین پر، تو اللہ نے آیتیں اتاری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک ایک کر کے. کوئی کتاب نہیں اتاری، کوئی مکمل دین نہیں اتارا. مکمل دین اتارنے میں اللہ کو لگے ہیں 23 سال مکمل قرآن اتارنے میں، اور مکمل دین لوگوں تک پہنچانے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لگے ہیں 23 سے 23.5 سال. تو ایک آیت میں اور ایک دن میں اللہ نے پورا دین نہیں اتارا. تو یہاں پر وہ کون سی کتاب ہے یا وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نے آلریڈی اتار دی اور لوگ اس پر ایمان بھی لے آئے؟ ہم بات اور کی سوتنترتا کے بارے میں بھارتی سمویدھان کے انوچھید 19 سے جو سمرتھن کرتے ہیں، ادھارنوں چھویوں اور سندربوں سمیت یہ ویڈیو کیول منورنجن سوچنا اور شیکشی ادیشوں کے لیے پردان کیا گیا ہے اور چینل کسی بھی غیر گتیویدھیوں کو بڑھاوا پروتساہت نہیں کرتا ہے. ہمارا مقصد کیول سماج جاگرک کرنا ہے. جے ہند دوستوں، بہت سارے لوگوں کا ایک ہی سوال ہے، کیا اسلامک کلٹ کبھی ختم ہو پائے گا؟ اگر ختم ہوگا تو کیسے؟ اب جہاں تک میری عقل کام کرتی ہے، اسلامک کلٹ کو ختم کرنے کے لیے کسی تیر تلوار کی ضرورت بالکل نہیں ہے. اسلامک کلٹ کو ختم کرنے کے لیے ان کی دین کی کتابیں ہی کافی ہیں. مومنوں کے سامنے ایسے سوال رکھے جائیں جس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے یہ اپنی کتابوں کو خود ترجمے کے ساتھ پڑھنے پر مجبور ہو جائیں، کیونکہ ایکس مسلم کے سوالوں کا جواب کوئی بھی اسلامک اسکالر دے ہی نہیں پاتا ہے. اور جب مومن اپنے عالموں سے سوال کرتے ہیں تو انہیں ڈرا دھمکا کر یا بہلا پھسلا کر بھگا دیا جاتا ہے. اسی لیے جب مومن خود سے اپنی ہی کتابوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں گے تو ایک نہیں ہزاروں غلطیاں دکھائی دیں گی، اور جب غلطیاں دکھائی دیں گی اور جن کے اندر انسانیت ذرا سے بھی زندہ ہے وہ اس اسلامک کلٹ کو چھوڑ کر انسانیت کی دنیا میں واپس آنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، بس وہی لوگ اس کلٹ کو لاد کر گھومیں گے. پر ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہوگی، اور ایسے لوگ اس سانپ کی طرح ہوں گے جس کے دانت توڑ دیے گئے ہوں. اسلامک کلٹ کو ختم کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے انٹرنیٹ. انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کریں، اس کلٹ کی کتابوں میں لکھی گندی باتوں کو سب کے سامنے رکھیں، ایکس مسلم کا سپورٹ کریں، یہ کلٹ اپنے آپ ختم ہو جائے گا. اچھا جی، لورز آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. میرا دل جل رہا ہے آپ کے ان الفاظوں سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ اتنی گستاخیاں کر رہے ہیں، برداشت نہیں ہوتا ہے. اگر آپ کو یہ بات گراں گزرتی ہے اور آپ کو یہ بات تکلیف دہ گزرتی ہے کہ کوئی آپ کے عقیدے کے مطابق جو آپ کے پروفٹ ہیں، جو آپ کا دین ہے، اس کے خلاف کوئی بات کرتا ہے یا ان کی عزت نہیں کرتا یا اچھے الفاظ میں ان کو نہیں پکارتا، تو کیا ان لوگوں کا دل نہیں جلتا ہوگا جن کو 5 وقت بونگے پہ چلا کر کے آپ کہتے ہیں کہ صرف ہمارا خدا سچا ہے، تمہارے سب جھوٹے ہیں؟ وَنَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. تو کیا ان لوگوں کی دل آزاری نہیں ہوتی ہوگی کافروں کی جب آپ رات دن ان کے خداؤں کو جھوٹا خدا کہتے ہیں؟ جب آپ کا قرآن کہتا ہے کہ تم ان کے جھوٹے خداؤں کو برا مت کہو. چلو یہ تو اچھی بات تھی کہ یہ کہا کہ برا نہ کہو، لیکن اس کے ساتھ جھوٹا کہنا ضروری تھا کیا کہ ان کے جھوٹے خداؤں کو برا مت کہو ورنہ وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہیں گے؟ پہلے سنو، جب وہ خدا ہے نہیں، مجھے ارے پہلے وہ تمہارے عقیدے میں نہیں ہے نا. ایک منٹ، وہ تمہارے عقیدے میں خدا نہیں ہے میرے بھائی، ان کے عقیدے میں تو خدا ہے نا جو اس کو خدا مانتے ہیں. ٹھیک اسی طریقے سے اس طریقے سے تمہارا جو خدا ہے وہ ان کے عقیدے میں خدا نہیں ہے، تمہارے عقیدے میں ہے. ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، ان کے لیے نہیں پڑھتے. ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو دعوت دیتے ہیں آؤ کامیابی اگر کی آپ طرف. اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پڑھتے تو مجھے اس میں کوئی مسئلہ، کوئی اعتراض ہوتا ہی نہیں. لیکن آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو اگر یہ کہتے ہیں کہ دوسرے خدا جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، ان کی عبادت نہیں کی جا سکتی، تو پھر آپ دوسروں کی دل آزاری کر رہے ہیں میرے بھائی. نہیں، ہم کیسے دل آزاری کرتے ہیں؟ آپ رات دن کہیں کہ ہمارا خدا عبادت کے لائق ہے، ہمارا خدا بہت اچھا ہے،
हमारा खुदा बहुत सुप्रीम है, हमारा खुदा बहुत प्यारा है, हम अपने खुदा पर ईमान रखते हैं, हम उसकी इबादत करते हैं, रात दिन कहें, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप ये कहते हैं ना कि सिर्फ हमारा खुदा इबादत के लायक है, बाकी सब झूठे हैं, तो इससे फिर हाँ, तकलीफ पैदा होती है। अगर उनका खुदा, अगर वो खुदा उसको साबित कर देंगे ना, जिसको वो मानते हैं, खुदा मानते हैं, तब अलग बात होगी। ये सवाल आप पहले कि आप अपने पहले खुदा बात को खुदा सुनो। साबित कर दें। जब आप दावा कर रहे हैं किसी चीज का, तो आप भी तो अपने खुदा को खुदा साबित करेंगे ना। आप मुझे बताएं कि आपके पास क्या दलील है कि आपका खुदा ही सारी कायनात का खुदा है। देखो, हर एक चीज को बनाने के लिए एक क्रिएटर की जरूरत होती है। अगर वो आपके पास क्रिएटर कोई तुम्हारा चीज, खुदा है, ये साबित करना है तुमने, क्रिएटर साबित नहीं करना। बेशक रब ने खुद फरमाया कुरान में, हाँ, तो वैसे ही मैं भगवत गीता में श्री कृष्ण ने फरमाया है कि मैं ही परम पिता हूं सबका, सब चीज का बनाने अच्छा, वाला मैं ही हूं। चलो मैं आपकी बात बाद में मानता हूं, पहले आप साबित करो। जो किसका नाम लिया आपने? मेरे भाई, मैं यहाँ पर किसी की भी एग्जांपल दूं, चाहे मैं सनातन की भगवान कृष्ण का एग्जांपल दूं, चाहे मैं जीसस का एग्जांपल दूं, मेरा एग्जांपल जो है वो सबके लिए है कि सब मजहब वाले यही मानते हैं कि उनकी किताबों में जो लिखा हुआ है वो सच है। तो सिर्फ इस बेस के ऊपर कि आपकी किताब में कुछ लिखा हुआ है, वो बात आपका अकीदा तो हो सकती है, पर वो बात उस बात का प्रूफ नहीं हो सकती कि वही सारी दुनिया का मालिक है जिसको आप खुदा मानते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अल्लाह ताला कहता है कि मैं वहदहु ला शरीक हूं, यानी मेरे सिवा कोई शरीक नहीं है। और ओके, एक मिनट, अच्छा, एक एक करके चलते हैं भाई, एक एक करके चलते हैं। ये सबूत है कि ये दावा है, ये दावा है ना। दावा तो है। मैं दावे पे बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ प्रूफ क्या है। किसी चीज को साबित करने के लिए प्रूफ लगता है मेरे भाई, दावा नहीं लगता। देखो, हमारा रब कहता है मेरी कोई बीवी नहीं है, मेरे कोई बच्चे नहीं है। जो ये शिवक है कमजोरी है, उसकी बीवी ये कमजोरी है मेरे भाई। भला मेरी कोई औलाद कैसे हो सकती है, सुनो मेरी बात, भला मेरी कोई औलाद कैसे हो सकती है जबकि मेरी बीवी नहीं है। अल्लाह यहाँ पर अपनी कमजोरी का इजहार कर रहा है कि बगैर बीवी के वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता। और जबकि वही अल्लाह कुरान के अंदर सूरह मरियम में ये कहता है कि बगैर बाप के हमने मरियम को बेटा दे दिया। तो जब वो मरियम को बगैर बाप के बेटा दे सकता है, तो खुद भी तो बगैर बीवी के बच्चा पैदा कर सकता है। उसको क्या जरूरत है बीवी बच्चे पैदा करने की? यार, तो जब जरूरत नहीं है तो उसको उसका जिक्र करने की तुमको क्या जरूरत है। सुनो, पहले हजरत ईसा की बीवी थी या नहीं थी? ईसा मूसा, अलैहिस्सलाम से मैंने बात कर रहे हो तो ईसा अलैहिस्सलाम का बाप कौन था भाई? मैं कहता हूं उसकी कितनी बीवियां थी? ओ यार, उसकी बीवियों की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बाप की बात कर रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ, मैं उसी सवाल का जवाब दूंगा। आप कहते हो ना ये रब की कमजोरी है, मैं वही अरे उसी का यहाँ जवाब पर दे रहा अल्लाह, इस हूँ। आयत के अंदर अल्लाह ये नहीं कह रहा है कि उसकी बीवी नहीं है। अल्लाह कह रहा है इस आयत के अंदर, जो तुम ईसा के कॉन्टेक्स्ट में लेकर के आए हो अब, वो यहाँ पर कह रहा है कि किसी मर्द का बाप नहीं है। तो ईसा के बेटों के नाम बताओ जरा, बताओ। मैं मैं अरे तुम्हें मैं मोहम्मद के वही बेटों के बात नाम कर रहा, बताता हूँ। हजरत ईसा मोहम्मद के बेटे का नाम है बीवियां थी। इब्राहिम, मोहम्मद के बेटे का नाम है कासिम, कासिम। मोहम्मद के बेटे का नाम है अब्दुल्ला। अब तुम मुझे जीसस के बेटे का नाम बताओ, ईसा के बेटे का नाम बताओ, क्या है? मैं भी वही तो आपसे मैं कह रहा हूँ ना, उसकी कितने बीवियां थी? अरे आप उसका जवाब दो, आप बात क्या करते हो, कहाँ पहुंच आए हो? मुझे बताओ हजरत ईसा की कितनी बीवियां थी? ओ यार, तो वो इंसान है, बशर है मेरे भाई, ईसा खुदा नहीं है। नहीं, बशर है, खैरुल बशर है। और मुझे हाँ ये बताओ कितनी बीवियां थी, बस इसका जवाब दे दे, क्योंकि यार, तुझे पता है ईसाई आपको। मुझे क्या लेना देना कि ईसा की कितनी बीवियां थी या कितनी नहीं थी। मैं ईसा पे बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं खुदा पे बात कर रहा हूँ। और ईसा को तो तुम खुदा मानते ही नहीं हो, तुम तो उसको बशर मानते हो, रसूल मानते हो। जो सवाल आपने किया मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, क्योंकि आपने रब के बारे में गुस्ताखी की। पहले आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी की, यार रब के बारे में अब उसका जवाब ले लो। क्या क्योंकि गुस्ताखी की है आपको मैंने, पता है क्या मैं गुस्ताखी किया मैंने नबी के बारे में? अरे मैंने नबी के हाँ, बारे में गुस्ताखी क्या की है वो बताओ पहले। मैं क्या बताऊं, मुझे तो बर्दाश्त ही नहीं होगा। क्या बात अरे करते हो यार, आप? मैंने कुछ गुस्ताखी तो की होगी ना, कुछ तो मैंने ऐसा अल्फाज हाँ, कहा होगा ना पहले कि भी नबी की शान में बहुत गलत होगा। तो क्या अल्फाज कहा है भाई, मैंने क्या गुस्ताखी की है, मैंने ये पूछ रहा हूँ। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं उन अरे भाई अल्फाजों को। ठीक है, बर्दाश्त वो नहीं आप कर सकते हो, पर मैंने वो अल्फाज क्या कहे हैं नबी की शान में जो आपको बुरे लग गए, वो तो बताओ। मैं माफी मांग लूंगा अगर वो गलत होंगे, मुझे बताओ तो क्या कहा मैंने।
खैर छोड़ो उस बात को, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। क्योंकि आपको पता है अगर मैं हजरत ईसा के बारे में बात करूंगा, क्योंकि सारे क्रिश्चियन नाराज हो जाएंगे यार मुझे और नहीं करना, अरे यार थोड़े मेरा बैल हो ईमान नहीं है। जाएंगे। यार एक बात सुनो, जब मेरा किसी चीज को लेकर कोई दावा नहीं है, जब मेरा किसी चीज को लेकर कोई क्लेम नहीं है, जब मेरी डिबेट का मुद्दा नहीं है, जो वो मेरे ईमान का हिस्सा आप नहीं है, तो मैं उस पर बात आप क्यों बात करूं करते तुमसे हो, भाई? मुझे मैं इस्लाम के बारे में, हम हजरत ईसा को मानते हैं, मुसलमान हजरत ईसा को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप मोहम्मद को मानते हैं कि नहीं एक मानते हैं? लाख 35,000 पैगंबर को मानते हैं कि नहीं आप मानते हजरत हैं? मोहम्मद आप हजरत मोहम्मद को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बेशक मानता हूँ, जानता हूँ, हाँ। तो आज मैं हजरत मोहम्मद पे बात कर रहा हूँ, हजरत ईसा पे बात नहीं कर रहा हूँ। तो प्यारे भाई आज का टॉपिक है हजरत मोहम्मद साहब, ना कि ईसा। सवाल कर रहे हैं आप, हिंदू को सवाल कर रहे हैं या आप यहूदियों के सवाल कर रहे हैं? सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ही है। मैं बता रहा हूं आपको, अब मुसलमानों के ऊपर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं मुसलमान था, मैं हिंदू नहीं था, मैं क्रिश्चियन नहीं था, मैं यहूदी नहीं था, मैंने उनकी किताबें नहीं अच्छा, पढ़ी। अगर एक मैं इसलिए इस्लाम पे बात करता हूं क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के 28 साल इस्लाम को दिए हैं। मैं इसलिए इस्लाम पे बात करता हूं क्योंकि मैंने इस्लामी किताबों को पढ़ा है, इस्लाम को प्रैक्टिस किया है, तबलीगी जमात में बैग बिस्तर उठा करके धक्के खाए हैं चिल्ले 4 महीने की जमातों में। मैं इसलिए इस्लाम पे बात करता हूं क्योंकि जब मैंने इस इस्लाम को छोड़ा तो तुम्हारे इस इस्लाम के मानने वालों ने मुझसे मेरा घर परिवार बीवी बच्चे सब छीन लिए और मुझे आवारा दर बदर भटकने पर मजबूर कर दिया, और इस हाल में आने पर मजबूर कर दिया कि आज भी मैं अपनी लोकेशन अपनी पहचान छिपा करके रहता हूं जहां रहता हूं। इसलिए मैं इस्लाम पे बात करता हूं। मेरी इन सारी हालात का जिम्मेदार ना तो यहूदी है, ना हिंदू है, ना ईसाई है, तो मुझे उनसे कोई लेना देना है ही नहीं। ना मैं उनको सही बोलता हूं ना मैं उनको गलत बोलता हूं। मैं इस्लाम पे सवाल कर रहा हूं जिसमें मेरी स्टडी है, जिसमें मेरी रिसर्च है। मैं तो उनको लास्ट मौका दे रहा हूं। इसके बाद अगर तुम मेरे टॉपिक पे आके बात करते हो जो कि है प्रॉफिट मोहम्मद इन कुरान, तो तुमसे आगे बातचीत हो सकती है। अगर तुम इधर उधर भागोगे तो तुमसे बात नहीं हो सकती। तुमने क्या देखा है क्या नहीं देखा, किसकी देखी है वीडियो किसकी नहीं देखी, मुझसे फर्क नहीं पड़ता। एक्स मुस्लिम समीर तुम्हारे सामने बैठा है, तुम मेरे सामने हो। अपने रसूल को नबी साबित करो अपने कुरान से। मैं नहीं कह रहा गीता से साबित करो, मैं नहीं कह रहा दूसरों की किताबों से साबित करो, मैं कह रहा हूं कुरान से अपने नबी को नबी साबित करो। मौका दे रहा हूं तुम्हें, और तुम्हें मौका दे रहा हूं एक्स मुस्लिम समीर को लाइव 1500 लोगों में हराने का। इस अपॉर्चुनिटी को जाया मत करो। हाँ भाई बताओ, इस आयत के अंदर अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है तो वो किसी मर्द के बाप नहीं है, ये कैसे हो सकता है? जबकि उनके 3 बेटे पैदा हुए और मर गए, कासिम, अब्दुल्ला और इब्राहिम। जवाब दे। जो ये सूरह ahzab आयत नंबर 40 है ये? हाँ जी, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40। हाँ बेशक ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है कि वो मर्दों के बाप नहीं है। अब ये मत कहना कि मैं गुस्ताखी कर रहा हूं, क्योंकि अगर कोई मर्द नहीं है तो जाहिरी तौर पर वो औरत है, और अगर वो औरत भी नहीं है और मर्द भी नहीं है तो जाहिरी तौर पर बीच का है। ठीक है, तो तुमसे ये पूछ रहा हूं कि अब्दुल्ला, कासिम और इब्राहिम मर्द नहीं थे, मेल नहीं थे, तो क्या थे? क्या सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दो। क्या थे? क्या मैं मर्द नहीं थे कहूँगा, तो क्या थे वो? मर्द थे जब निकल गए, तब जब रब बात करे तो वो उनके बारे में ही करेगा ना, जो जाहिरी तौर पर मौजूद है उनके बारे में थोड़ी ना करे जो इस दुनिया से चले गए हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। समझ आ तो रही है इस बात आयत नहीं के है? अंदर अल्लाह मोहम्मद को थे क्यों कह रहा है क्यों नहीं कह रहा जब वो मौजूद है? माँ काना मोहम्मद उनका मतलब होता है नहीं था मोहम्मद, नहीं थे मोहम्मद। है नहीं होता इसका मतलब, माँ काना का मतलब होता है नहीं थे, क्योंकि ये पास्ट टेंस है, माजी का सीगा है। तो तुम्हारा नबी जब मौजूद है तो अल्लाह उसको थे क्यों कह रहा है, अगर ये तुम्हारा नबी है तो? बोलो। जो मेरे यहाँ पर तर्जमा है, तफसीर है, वहां पर तो है लिखा। ओके, तो तुम ये कह रहे हो कि माँ काना का मतलब है होता है? जी भाई, माँ काना का मतलब है होता है कि थे होता है अरबी में? मेरे क्या सामने होता है? जितने भी तर्जमे हैं वो उसमें है लिखा है। ये तुम्हारे ट्रांसलेटर ने उसके अंदर बोंगी मारी है, उसके अंदर 2 नंबरी की है, तो उन्होंने इसका ट्रांसलेशन कर दिया है, जबकि उसका ट्रांसलेशन है नहीं है, क्योंकि माँ काना का मतलब ही थे होता है।
अब देखो सूरह आल इमरान की आयत नंबर 67 जब तुम देखते हो, यहाँ हजरत इब्राहिम के बारे में बात हो रही है और सेम लफ्ज है माँ काना इब्राहिम, माँ काना इब्राहिम, यहूदियां वाला नसरानिया। देखिए यहाँ तुम्हारे अरबी के ट्रांसलेटर ने अल्फाज के लिखा, 2 माने हो सकते हैं। क्या बोल रहे हो? यार एक तो तुम्हारा इंटरनेट एक इतना अरबी बीमार है ना। अल्फाज के 100 माने निकलते हैं। तर्जुमा बार अरे भाई मेरे, एक अरबी अल्फाज के 200 मायने निकलते होंगे, लेकिन माँ काना जिस टर्म में यहाँ इस्तेमाल हुआ है 3 की 67 में, उसी कॉन्टेक्स्ट के साथ सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 40 में इस्तेमाल हुआ है। वही मैं तुमको पढ़ के सुना रहा था, जरा सब्र रखो, माइक अपना म्यूट रखो और बात को सुनो। यहाँ लिखा हुआ है माँ काना इब्राहिम यहूदिया वाला नसरानिया। माँ काना के साथ इब्राहिम का जिक्र है, नफी है यहूद और नसारा की। कह रहा है कुरान की यहूदी और नसारा नहीं थे इब्राहिम, थे नहीं थे इब्राहिम यहूदी और नसारा, वलाकिन जमा, वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमन, लेकिन हनीफ होकर के मुसलमान थे। तुम्हारे ट्रांसलेटर ने यहां लिखा इब्राहिम ना तो यहूदी थे ना नसरानी थे, बल्कि वो तो ये एक तरफा खालिस होकर मुसलमान थे, वो मुशरिक भी नहीं थे। वमा काना, फिर से आया वमा काना मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकों में से नहीं थे। तो जब यहां तुम्हारे ट्रांसलेटर ने 4 बार थे लिखा, बार बार माँ काना का तर्जुमा उसने थे लिखा, तो क्या मौत आई थी तुम्हारे ट्रांसलेटर को? क्या मैयत उठ गई थी उसकी? यहां माँ काना मुहम्मद उनको थे लिखते हुए, जबकि मेरे सामने जो तर्जुमा है उसमें तुम्हारे स्कॉलर ने ना तो है लिखा ना तो थे लिखा। उसने लिखा तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप मोहम्मद नहीं, बस नहीं के बाद ना तो है लिखा ना थे लिखा, सीधा लेकिन लिखा। क्यों? कॉन्टेक्स्ट वही है, माँ काना मुहम्मदुन, नहीं थे मोहम्मद, अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, किसी मर्द के बाप, वलाकिन जमा, सेम कॉन्टेक्स्ट, रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा। अब मुझे बताओ, जब तुम्हारा नबी मौजूद है, उस पर कुरान नाजिल हो रहा है, ये आयत नाजिल हो रही है, तो तुम्हारा नबी, तो तुम्हारा कुरान तुम्हारे नबी को थे क्यों कह रहा है क्यों नहीं कह रहा? जिस वक्त वो बात इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कर रहे हैं, उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मौजूद थे या नहीं थे, या नहीं थे, इस दुनिया से वफात पा गए थे? गुजर गए थे, नहीं थे। अब बात थे कि आएगी, सुनो, अब बात थे कि आएगी या है कि आएगी? थे की आएगी। तब ट्रांसलेटर है क्यों कहे? बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, थे ही कहना चाहिए। लेकिन जब यहाँ पर वही लफ्ज आता है माँ काना मुहम्मद, तो यहाँ पर है क्यों आएगा, थे क्यों नहीं आएगा? तुम्हारा ही सवाल तुमसे ही है, इसीलिए आएगा क्योंकि उस वक्त इब्राहिम, कासिम और ताहिर या अब्दुल्ला कहेंगे, उनके बारे में नहीं है, वो उस वक्त गुजर चुके थे। अरे यहाँ अब्दुल्ला कासिम और उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ मोहम्मद की बात हो रही है कि मोहम्मद थे मोहम्मद की बात हो रही है। मोहम्मद मौजूद था कि नहीं था जिस वक्त कुरान नाजिल हुआ? जो मेरे पास तर्जुमा है, सुनो, सैयद अबू अला मौदूदी का पहला है, लोगो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, मगर वो अल्लाह के रसूल और खातिमुन नबीन है, और अल्लाह हर चीज का इल्म रखने वाला है। और इसके बाद जो मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी है, उसने भी ये लिखा है, मुसलमानों मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। सुनो, मौलाना सैयद अबुल अला मौदूदी का तर्जुमा ये मेरे हाथ में है, इन फाइल, इन कॉपी फॉर्मेट। मैंने भी पढ़ा है, मैं यहां भी पढ़ रहा हूं सारे तर्जुमे। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि तुम्हारे ट्रांसलेटर ने है नहीं लिखा, बिल्कुल लिखा है, मगर मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारे ट्रांसलेटर ने 2 नंबरी की है इसका ट्रांसलेशन करने में, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो यहाँ पर असल ट्रांसलेशन असल लिखेंगे थे तो मोहम्मद को नबी साबित नहीं कर पाएंगे। मोहम्मद को नबी साबित करने के लिए उनको मौजूद दिखाना पड़ेगा, इसलिए ट्रांसलेटर में डंडियां मारी हैं। वही तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूं, तुम्हारी समझ में शायद बात नहीं आ रही है। एक अरबी लफ्ज के 100 तर्जमे होते हैं, अगर किसी जगह उसका तर्जमा थे निकलता है तो किसी जगह है भी निकलता है।
जिस तरह दिखाएं, अरबी यहाँ पर अरबी लुगात से आपने दिखाएं, जो आयत सुने, है, अरबी लुगत की किसी भी किताब से मुझे दिखाएं कि माँ काना जहां पर आएगा वलाकिन के सीगे के साथ, सॉरी वलाकिन की शर्त शराइत के साथ में, और पास्ट टेंस के सीगे में, जमा के सीगे में, तो वहां पर माँ काना का अच्छा जो माना है वो है लिया जाएगा। मुझे अरबी लुगा की किसी भी किताब से दिखाएं आप, चलिए दिखाएं। ये इसी अल्फाज का तो नहीं होगा, लेकिन बहुत से अल्फाज ऐसे हैं अरबी में मैं तो इसी जिनके अल्फाज पे बात कर रहा मतलब हूं, नहीं मैं और अल्फाज पे बात ही नहीं कर रहा हूं। फिर तो एक दिन लगेगा अल्लाह उसे जो निकल है, देने अल्लाह जो है, फिर एक मिनट, मुझे अल्लाह जो बताओ है कि वो अरबी का खातमुल लफ्ज है नबीय्यीन कि कौन है? नहीं है? एक मिनट भाई, अल्लाह जो है वो अरबी का लफ्ज है कि नहीं है? अल्लाह अरबी का लफ्ज है बेशक। ओके, तो अल्लाह के मायने एक हैं कि कई सारे हैं? अल्लाह के माने अल्लाह है, खुदा है, मतलब असल में अल्लाह तो के एक ही जो भी है। माने हैं, अरे मैं माना नहीं पूछ रहा अल्लाह का क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ अल्लाह का जो भी माना है वो एक है या एक से ज्यादा है अरबी में? हाँ, एक ही है। एक ही है ना? तो इसका मतलब अरबी में ऐसे अल्फाज हो सकते हैं जिनका माना एक ही हाँ होगा, ठीक है? तो मैं ये कह रहा हूं माँ काना का हाँ माना एक ही है और वो था है। अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं माँ काना का माना है भी होता है, तो अब ये आपको साबित करना है, क्योंकि दावा आपका है, दलील आपके जिम्मे है, मेरे जिम्मे नहीं है। साबित करें। पर सिद्धार्थ भाई यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा भी होता है कि अगर एक एक वर्ड का बहुत सारा मीनिंग निकलता है तो ये भी तो हम देख रहे हैं कि अल्लाह ने एक ऐसे लैंग्वेज में कुरान को भेजा है जो ऑलरेडी बहुत, जिसके वर्ड स्टॉक भी कम है और अपने आप में बहुत कमजोर एक लैंग्वेज है सिद्धार्थ भाई। ये एक कमजोरी का साइन है किसी भी एक लैंग्वेज में कि एक वर्ड से बहुत सारी चीजों को समझाया जा सके, तो ये भी तो एक बात है ना। जब इनके पास किसी चीज की दलील नहीं होती है ना, जवाब नहीं होता, तो फिर ये टॉपिक को जो है ना स्किप करते हैं, डाइवर्ट करते हैं। देखिए मैंने सर्च किया माँ काना मीनिंग इन अरबिक लुगा, तो यहां पर सर मेरे पास जो रिजल्ट है वो है माँ काना इन अरबिक ट्रांसलेट्स टू वाज नॉट। सर वाज नॉट नहीं था, वाह वाह। है कहीं भी नहीं है भाई। अगर मेरे पास इस वक्त अरबी की कोई किताब होती तब मैं आपको दिखाता। आप कहते हो दिखा दो दिखा दो, इस वक्त कहाँ से मैं दिखा दूं? तो भाई आप ऐसा करो, अगर आप साबित नहीं कर सकते या दिखा लेकिन नहीं जो सकते तो आपको दावा भी नहीं करना चाहिए ना किसी चीज का। आप तो दावा बगैर दलील के कर रहे हो ना, ये तो अल्लाह के कलाम में अपने अल्फाज जोड़ने वाला काम है ना। दावा क्यों नहीं करेंगे? तुम्हारे ये सारे के सारे देखो दावा क्यों नहीं करेंगे? दावा सुन तो लो यार, या कि तुम्हारी बीमारी ये है कि तुम्हारे पास दलील भी नहीं है, तुम्हारे पास कोई जवाब भी नहीं है, और तुम्हें सुनना भी नहीं है, तुम्हें बोलना है चपड़ चपड़ बीच में। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है, इसलिए तुम जिंदगी में कभी भी इल्म हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो आदमी सुनता नहीं है सिर्फ बोलता रहता है उसको इल्म नहीं मिलता मेरे भाई। तो एक मिनट तहम्मुल रख के सुनो भी, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ तो दजालों की नहीं तुम्हारे, सुनते हैं जो उनको अल्लाह ताला ने अपने ईमान से ही महरूम किया है। अरे यार वो ईमान मेरे पास है तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि ईमान का मतलब होता है एक वो तो मुझे ऐसा दिखता है। स्टैंड जिसको तुम साबित कर सको। तुम साबित नहीं कर सकते तो तुम्हारे पास नहीं है ईमान, तुम्हारे पास सिर्फ धोखा है। ओके मेरे भाई, वो तो मुझे अब तुम बात को सुनो, फिर अब तुम बात को सुनो, खामोश होकर, खामोश होकर के बैठो, बात को सुनो। मैं ये कह रहा हूं ये जो तुम्हारे ट्रांसलेटर हैं जिन्होंने माँ काना का मतलब यहाँ पर है लिखा है, ये सारे के सारे अकॉर्डिंग टू इस्लामिक नैरेटिव और कुरान ये सारे जहन्नमी हैं, और तुम जैसे लोग भी जहन्नमी हैं जो अपनी तरफ से कोई भी अल्फाज अल्लाह के कलाम में आकर के ऐड ऑन करते हो, क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमाया है कि माँ अकमलतु लकुम दीन को, हमने इस कुरान को मुकम्मल कर दिया। अब इसके अंदर अगर जर्रा बराबर कोई घटाए या बढ़ाए तो भाई मेरे उसका ठिकाना जहन्नम है। तो तुमने आकर के बिना दलील के ये क्लेम किया कि माँ गाना का मतलब है, और तुम्हारे ट्रांसलेटर ने यहां पर है की ट्रांसलेशन लिखी है, तो तुम और तुम्हारे ये ट्रांसलेटर सारे जहन्नमी है अकॉर्डिंग टू कुरान, क्योंकि अल्लाह के जो अल्फाज हैं, अल्लाह का जो कलाम है उसका मतलब है था। अगर तुमको ये लगता है और तुम ये समझते हो कि माँ काना का मतलब था नहीं बल्कि कहीं पर किसी सूरत में है भी होता है, तो फिर उस कंडीशन में तुमको दलील के साथ ये बात साबित करनी होगी, किताबों से, स्क्रिप्चर से, मुंह से नहीं, बोलकर नहीं। क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूं वो मैं दलील के तौर पर सामने स्क्रिप्चर दिखाकर कर रहा हूं। मैंने कुरान की दूसरी आयत पेश की है तुमको ये साबित करने के लिए कि माँ काना का मतलब थे ही होता है, मगर तुमने मुझे अब तक कोई हवाला नहीं दिया इस बात को साबित करने के लिए कि माँ काना का मतलब है भी होता है। अगर तुम्हारे पास हवाला है तो तुम पेश करो।
मेरे पास तो नहीं है, लेकिन जो भी आलिम जिन्होंने भी ये लिखा है उनके पास तो हवाला है ना। आ वो दे भाई दो। फिर आप बोलोगे कि बोलने नहीं देते। भाई जो मांगा जा रहा है वो दो यार। देखो मेरे पास तो नहीं है, मैं कोई आलिम नहीं, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, तो हाफिज नहीं भाई हूँ, लेकिन बगैर बगैर दलील जिन्होंने के लिखा था दावा उनको करने वाले को क्या कहा जाता है? जिसके पास दलील ना हो और दावा करे, उसको क्या कहा जाता है? कहो। क्या कहा रिपीट जाता है? कैसे हो? आवाज रिपीट हो रही है। अच्छा समीर, ये मुझे बताएं कि ये अजीब सा नहीं है कि हजरत जिब्राइल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास आए और उनको कहते हैं कि मोहम्मद मर्दों में किसी के बाप नहीं थे? ये क्या बात हुई? वो बंदा जिंदा मौजूद बैठा हुआ, उसको थे क्यों कह रहा है वो? बिल्कुल ऐसा ही है भाई। आपकी तरफ से इको होने लगा है, लवर्स ऑफ प्रॉफिट। आप अपना माइक ठीक कर ले पहले, और तब तक के लिए प्लीज अपना माइक म्यूट रखें जब तक आपका मसला ठीक हो जाए। आपने बिल्कुल सही बात कही है। देखिए, ये जो है ना, अपने आप में एक इतना बड़ा ब्लेंडर है कुरान का। और सिर्फ एक आयत नहीं है मोहम्मद अरबी साहब, सिर्फ एक आयत नहीं है, चारों की चारों आयतें जिसमें मोहम्मद का लफ्ज आया है, यहां तक कि पांचवी भी जिसमें अहमद का लफ्ज आया है, वो सारी की सारी ये साबित करने में, ये क्लियर करने में साहब वो नाकाम है कि ये बात जो है वो मुसलमानों के मौजूदा नबी के बारे में की जा रही है। क्योंकि ये वाली आप आयत देखते हैं 47 की 2, और जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए और इस पर भी ईमान लाए जो मुहम्मद पर उतारी गई है, और दरअसल उनके रब की तरफ से है, सच्चा मतलब सच्चा भी वही है, अल्लाह ने उनके गुनाहों को दरकिनार कर दिया है। तो यहां पर भी ये जो आयत है ये सवाल खड़ी करती है, सवालात पैदा करती है मोहम्मद अरबी साहब। वो ये कह रहा है कुरान कि जो लोग ईमान लाए किस पर, जो कुछ भी हमने उतारा मोहम्मद पर, और जो लोग ईमान लाए मोहम्मद पर और सच्चे दीन पर, तो अल्लाह ने आयतें उतारी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक एक करके। कोई किताब नहीं उतारी, कोई मुकम्मल दीन नहीं उतारा। मुकम्मल दीन उतारने में अल्लाह को लगे हैं 23 साल, मुकम्मल कुरान उतारने में। और मुकम्मल दीन लोगों तक पहुंचाने में भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगे हैं 23 से 23.5 साल। तो एक आयत में और एक दिन में अल्लाह ने पूरा दीन नहीं उतारा। तो यहाँ पर वो कौन सी किताब है या वो कौन सी चीज है जो अल्लाह ने ऑलरेडी उतार दी और लोग उस पर ईमान भी ले आए? जबकि अभी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, तबलीग कर रहे हैं और अभी लोगों को दावत दे रहे हैं इस्लाम में आने की, और अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ईमान में दाखिल नहीं हुए हैं। तो इससे भी पता चलता है कि ये आयत भी मौजूदा हालात के बारे में या मौजूदा नबी के बारे में बात नहीं कर रही है, बल्कि ये एक ऐसी एंटिटी के बारे में बात कर रही है जो पहले आई और उस पर लोग ईमान लेकर के आए, जिसकी वजाहत मिलती है आपको सूरह मायदा में, जहां पर अल्लाह ये कहता है कि और ईसा की कौम कयामत तक सुपीरियर रहेगी। क्यों? क्योंकि वो उसके रसूल पर, उसके नबी पर जो है ईमान लेकर के आई है। तो साहब इसमें मोहम्मद का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। एक भी आयत से साबित नहीं कर सकते सर ये कि इनका मौजूदा नबी मोहम्मद है जिसके बारे में बात की जा रही है, एक भी नहीं। बिल्कुल। और सिद्धार्थ भाई इसी के साथ देखिएगा जितनी बार भी लिखा हुआ है वो आयत मतलब वो किताब ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि उसके जिंदगी में अगर नाजिल हो रहा होता तो ऐसे बोलते कि जो किताब नाजिल किया जा रहा है, लेकिन ऑलरेडी नाजिल हो चुका है, राइट? इस तरीके से बयां किया गया है, मतलब कंप्लीट हो चुका हाँ है उसका जी नाजिल। जी जी, ये भी पास्ट में बात कर रही है कि कर चुके हैं हम ऑलरेडी नाजिल। तो मतलब काम नबी पर तो खत्म हो नाजिल चुका हो रहा है। था, 23 साल में नाजिल हुआ। ये कौन सा इल्म है, ये कौन सा जिक्र है, ये कौन सी किताब है जो ऑलरेडी नाजिल हो चुकी है? क्या नबी के ऊपर कुरान के अलावा भी कुछ और उतरा है? और जितने भी सूरा है देखिएगा इस तरह का आयत है वो कुरान के स्टार्टिंग से बीच बीच तक आता है, लास्ट का भी सूरा नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते कि लास्ट में आया था। ये जो सूरा जितने भी है ना बीच में या फिर स्टार्टिंग के तरफ ही मिलेगा आपको सिद्धार्थ भाई, ये भी देखिए नाजिल हुआ सूरा। भाई क्या बोले। और देखो व्यूअर्स के लिए एक सिंपल चीज मतलब सिंपल चीज बता देता हूँ कि देखिए आप में से बहुत कोई आके बात करते हो सिद्धार्थ भाई को बोलते कि हमें बोलने नहीं देते, जब फंस जाता है सिद्धार्थ भाई, बहुत बार होता है, राइट?
लेकिन देखिए एक सिंपल सी बात है कि अगर आप ऑन टॉपिक पे बोलेंगे, ऑन पॉइंट बोलेंगे, आप घंटा भर बात कर सकते हैं, टोका नहीं जाएगा। लेकिन अब अगर आप मतलब ऑफ टॉपिक जाएंगे तो डेफिनेटली आपको टोक के जो है आपको रोका जाएगा, ठीक है। आप टॉपिक पे सारा दिन बात कर सकते हो, तो ये एक चीज ध्यान रखना कि आप टॉपिक पे बात करें, जो भी लोग बात करने आए। और इन केस अगर फंस जाते हैं तो ये आंसर दे दीजिएगा कि इसका जवाब नहीं है, मैं ढूंढ के लाऊंगा। इससे बेटर और रिस्पेक्टफुल कोई चीज हो नहीं सकता सिद्धार्थ भाई, पर ये काम कभी नहीं करते ये लोग। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने रखते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।